Well, good morning, dear students. Hope you are enjoying good health and enjoying your study at home. Hope that we will be meeting soon after this month. So most probably from 1st of December, classes for 6th onwards, that is 6th, up to plus 2 will be there. But it is a hope, against hope, you can say. Hello, anyhow. We have already started our chapter number 11, that is force and pressure, and we have taken 2 lectures on force. Okay? Force is energy, and force is nothing that we want to do some work. We have taken a very well, you can say, example of push or a pull of a drawer. If you want to close the door, either you push it or you pull it. When it is open inside, you pull it and then lock it and all that. तो कहने का मतलब क्या है? Force क्या है? It is a push or a pull on an object. So then how it arises? Until and unless there is an interaction between the two objects, force doesn't exist. Force exists as and when there is an interaction between the two objects. Then we have types of forces, effect of forces. This is all we have studied. Effect of forces. It can cause a stationary object to move. It can cause you can say, moving object to stop. It can change the direction. It can accelerate. मैंने आपको एग्जांपल दिया था, घर जा रहे हो छुट्टी के बाद, wind pressure is from the behind and your cycle, you need not even paddling it and all that. Then it may even change the shape and size of the object. Making of tools by this लोहार बैठे होते हैं बनाते हैं, making this agriculture implements. They are heating the iron material, raw material, then they are hammering it. By hammering उसको flat करते हैं, they give it the desired shape. ठीक है? तो कहने का मतलब क्या, ये सारे क्या है उसके effects, the force. Okay, now coming to the pressure. Just yes, और हमने ये भी देखा था एक जब force apply करते हैं, when it is applied in the same direction, it is going to increase the, यानी कहने का मतलब क्या है, force has a direction as well as the magnitude. Force will increase if it is applied in the same direction. Force will be the resultant of two forces if they are applied in the opposite direction. It may be zero if the forces applied in the opposite direction is same. फिर वो हमने आप एग्जाम्पल लिया था टग ऑफ वॉर, रस्सा कस्सी स्कूल में खेलते हो आप टीचर्स के साथ, और आपको टीचर्स को हरा के बहुत मजा आता है. क्यों? रीजन क्या है? टीचर्स आर नॉट इन प्रैक्टिस फॉर डूइंग ऑल दीज थिंग्स. वो खेल कूद नहीं ज्यादा करते, वो आपको पढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, उनका टाइम उधर ज्यादा लगता है. और आप यंग ब्लड हो, टीचर्स में एक मिक्सअप होता है. Suppose I am there in the teacher's squad at this age of 60 plus, how much force I can apply? So tug of war, that is also example which tells you that force has magnitude and direction and all that. Okay, then we have types of forces we have done. Contact forces. Until and unless there is a contact between the two objects, this force doesn't come into play. Muscular force, frictional force that we have studied. The non-contact forces. Non-contact forces, magnetic force. There is no physical contact between the magnetic material and the magnet, but still there is attraction. Then you have studied electrostatic force, and lastly that Newton's law of gravitation. Gravitational force.
the force existing between the two masses. That is the gravitational force. It is because of this gravitational force only our earth, moon, all this, you can say, planets, asteroids, meteors and all that, they are having a specific path. They are revolving around the sun, and their moons or their satellites, they are revolving. As moon is our satellite, natural satellite, it is moving around the earth, revolving around the earth, like that. So it is all because of what? The gravitational force. And when the force is between the earth and an object, it is known as the gravity, simple gravity, force of gravity or gravity. वहां वो gravitational है, यहाँ वो gravity है. और सब क्या बच्चों? When the mass is quite big, huge amount of this gravitational force is there. So all this we have studied. Now coming to the pressure. We will be devoting 3 lectures on this. Today we will try to understand what is pressure, how it is exerted, and in next lecture we will do the pressure exerted by the liquids, and the last lecture we will take up is the pressure exerted by the gases and the atmospheric pressure. We will be doing activities mainly in the next 2 lectures. And in today's lecture, we are going to understand what pressure is, how it is exerted. मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया था बच्चों कि आप शादी में जाते हो, थोड़ा रश है वहां पे किसी भी काउंटर पे, और आप सब शौकीन होते हो गोलगप्पे खाने के, टिक्की खाने के. अगर किसी का पांव आपके पांव पे अनइंटेंशनली रखा जाता है, वापिस आते हुए जाते हुए, क्यों? उस पर काउंटर तो इतना बड़ा नहीं होगा ना, काउंटर छोटा सा, ये लेने वाले 10-15 लोग हैं, तो रश ही हो जाता है. अगर बच्चों जिस जेंटलमैन का या जिस जेंटल लेडी का पांव आपके पांव पे आया है, इफ दैट जेंटलमैन इज वेयरिंग ए शू विद ब्रॉड सोल, चपटा है उसका सोल, तो आपको इतना ज्यादा महसूस नहीं होता. बट इन केस द जेंटल लेडी इज वेयरिंग ए पॉइंटेड हील सैंडल्स एंड ऑल दैट, यू फील मोर पेन. अब क्या हुआ बच्चों? फोर्स ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? आपका पांव है. फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? दैट जेंटलमैन एंड द जेंटल लेडी. ओके, बट in case of the gentleman, you feel the lesser pain, whereas in case of the gentle lady, you feel more pain. आपको ज्यादा महसूस होता है कि यार मर गए. So what is that? When the force is acting on an object, जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेशर. अब क्या है? उस जेंटलमैन का फोर्स, थोड़ा मोटा भी है वो जेंटलमैन का फोर्स क्या है? कहां का एक्ट कर रहा है? कौन से ऑब्जेक्ट पे? आपके पांव पे. और जेंटल लेडी दुबली पतली है, उसका कहां एक्ट कर रहा है? फिर आपके पांव पे. सो प्रेशर क्या है बच्चों? प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए ऑब्जेक्ट. जब तक वो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट नहीं करेगी, प्रेशर विल नॉट बी फेल्ट. एंड दिस प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ, it depends upon the area of contact. The example is, yes, I will give you the example, another example. So what is pressure? Pressure is produced when a force acts on an object, and it entirely depends on the area of contact. कितना contact area है. अब क्या बच्चों? अब ड्राइंग बोर्ड पिन आप लगाना चाहते हो बोर्ड के अंदर, ठीक है?
अगर तो आप जस्ट लेट मी आई एम जस्ट वॉचिंग देयर इज वन ड्राइंग बोर्ड पिन और नॉट नो 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 इट इज नॉट अवेलेबल. ओह sorry बच्चों, in next lecture I will be showing you. Again today I forget to bring the drawing board pin. Today I have come, I'm in a bit hurry. Okay, I will show you. In the next lecture I will show you. No problem. When you are trying to push a board with your thumb never, it doesn't go inside the board. अब क्या है बच्चों? The area of contact is the area of the thumb. Now what you do? You take a drawing board pin, you just put same pressure with the same thumb on the head of the drawing board pin. It parts through. उसके अंदर बोर्ड के अंदर घुस जाती है. अब क्या हुआ बच्चों? First, when you are pushing the drawing board with your thumb, the area of contact is the area of the thumb. Okay, now when you are applying the same force on the head of the drawing board pin, you are applying this drawing board pin में क्या होती है? पॉइंटेड होते नेल्स ही होती है बच्चों. The same pressure through the drawing board pin head is put on that small area of this needle-like structure. Now this goes inside the board. Okay, so एग्जाम्पल ड्रैग बोर्ड पिन. तो कहने का मतलब क्या है? प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन ए ऑब्जेक्ट एंड इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. एन एग्जाम्पल आई हैव गिवन यू द ड्रैग बोर्ड पिन. प्रैक्टिकली वी विल ट्राई टू डू इट. ओके, और other what we can say? We can say that effect of a force depends upon the area of the object on which it acts. समझे? अब क्या है? अब इसमें क्या है? ड्राइंग बोर्ड पिन में जो सेम फोर्स थंब की है, कौन से एरिया पे, कितने एरिया पे वो एक्ट कर रही है? ऑन दिस पिन ओनली. On this pin only. In the first example, when we try to push our thumb against the board, it doesn't go inside. Okay? But in the second case, the same pressure is applied on the tip of the pin. We can say that effect of a force depends upon the area of the object on which it acts. अगर एरिया ऑन विच इट एक्ट्स, अब क्या हो गया बच्चों? सो व्हाट इज प्रेशर? व्हाट इज पी? P इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A पर यूनिट एरिया. फोर्स पर यूनिट एरिया. प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया. अब एरिया यहां पे क्या है बच्चों? डिनोमिनेटर है. ये डिवाइड करता है ऊपर वाले फैक्टर को. अगर ये लेस होगा, योर आंसर विल बी मोर. अगर ये ज्यादा होगा, योर आंसर विल बी लेस. सपोज दिस इज फैक्टर इज 2, 5 और 10 एंड फोर्स अप्लाइड इज 100, सेम 100. कितना होगा बच्चों? 10, 20, 50. That means same force is going to have a pressure of 50 Pascal, 20 Pascal or 10 Pascals. If the area is less, the area goes on increasing,
amount of pressure decreases. Amount of pressure decreases. So, मैंने पास्कल वर्ड यूज किया बच्चों. क्या है? द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द प्रेशर इज न्यूटन per meter square. Newton per meter square. And this is also known as Pascal. So 1 Pascal is equal to SI unit is Newton per square meter n oblique m square. And it is also known as Pascal, or it is written as P capital A small, PA. So 1 PA is equal to Newton per 1 Newton per meter square. If it is a high pressure, if we are measuring and all that, it can be kilopascal. Kilopascal means 1000 of newtons or 1000 pascal and all that. तो इतना कुछ समझने के बाद हम क्या कह सकते हैं बच्चे? Pressure depends upon two factors. Pressure depends upon two factors. One is the force applied. Force applied. जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा. Secondly, area over which force act. Area over which force act. If the area is small, same force is going to exert more pressure, since area is a denominator, dividing factor है. P is equal to F oblique A. Pressure is equal to force divided by area. So कि कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है क्वांटम ऑफ प्रेशर? फोर्स अप्लाई. ठीक है, फोर्स ज्यादा बढ़ाओगे प्रेशर ज्यादा होगा. कई बार बोलता हूं ना क्लास में, आपने आंसर नहीं दिया, 2 बच्चों ने, किसी बच्चे ने आंसर दे दिया, ओके, मैं तो चांटा मारूंगा नहीं, जिसने दे दिया चांटा लगाओ. ऐसे बड़े प्यार से. लड़का भी अगर लड़के को मार रहा है ना, द बॉय इज गिविंग पनिशमेंट टू द बॉय, बड़े प्यार से दोस्ती होती है ना. ठीक है, नो. और लेकिन मैं फिर क्या बोलता हूं, मैं बताऊं कैसे लगता है चांटा. फिर क्या होता है, टड़क आवाज आती है ना. फोर्स अप्लाइड. और कई बार क्या होता है, इतनी भी फोर्स हो जाती है, it gives the impression of fingers. Area over which it acts. कितने एरिया पे लग रही है? Area being the denominator, dividing factor. Area is less, pressure will be more. Force is same. If the area is more, वही बात हो गई अंकल एंड आंटी वाली, शादी के पंडाल वाली. अंकल ने जो शूज डाल रखे थे, उसका जो नीचे वाला तला था वो ब्रॉड था, चपटा था. मोटे थे अंकल, फिर भी आपको ज्यादा महसूस नहीं हुआ. आंटी ने जब वो हील वाली नोकीली सैंडल डाली हुई थी, दुबली पतली आंटी ने आपको ज्यादा पेन दिया. ओके, नाउ बच्चों क्या है, डेली वी आर एक्सपीरियंसिंग सो मेनी ऑब्जर्वेशंस which prove this. First and the foremost example is, आप डेली स्कूल आते हो, आप अपना बैग लेके आते हो. Why the strap of the school bag is quite broad? जो उसका जो ये जो कंधे पे आप लेके आते हो वो चपटा होता है. इतना चपटा कम से कम. Why? रीजन इज क्या है बच्चा, आपकी होमवर्क वाली बुक, आपकी रफ बुक, आपकी फेयर बुक,
रोज 6 लेक्चर्स लगते हैं, 6 बुक्स होंगी, 6 नोटबुक्स होंगी, कोई एक आधी रफ नोटबुक होगी, ठीक है ना। तो क्या है, योर बैग बिकम्स हैवी एंड यू आर पुटिंग दैट बैग ऑन योर शोल्डर। नाउ अब जो आपको नीचे, उसको क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स उस बैग को नीचे की तरफ खींच रही है। उसका जो वेट है, इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। उसका जो मास है, वो उसका जो प्रेशर पड़ रहा है, फोर्स जो नीचे जब पड़ रही है, आप कहां पड़ रही है, आपके कंधे पे, आपके कंधे पे। अब सपोज बच्चों, आपके कंधे पे जो स्ट्रिप है, अगर हम उसको ब्रॉड कर देंगे, चौड़ा कर देंगे, क्या होगा, वो जो फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स आपके कंधे पे लग रही है, द सेम डाउनवर्ड फोर्स इज बीइंग पुट ऑन योर शोल्डर ऑन ए लार्ज एरिया। इफ द स्ट्रेप ऑफ द school bag is lesser, area will be less, on which the same force, same weight is being applied. What will be the effect? Area more, pressure less. Area less, इतना कर दिया, pressure more. क्या होगा बच्चों, घर तक पहुंचते पहुंचते आपका कंधा, हाय मम्मा मर गया, आज तो बहुत दर्द हो रही है, होगा ना। आप एक छोटा एग्जांपल देता हूं। आप कई बार क्या है, मार्केट में जाते हो मम्मा के साथ, मम्मा ने वहां पे अप्रोक्सीमेटली, आप छोटे बच्चे हो, 5 kg शी हैज परचेज शुगर और सम दाल, सीरियल्स। आजकल क्या होता है बच्चों, दुकानदार किस में देते हैं, दालें वाले, वो पन्नी सी में डाल देते हैं। अब मम्मा क्या कहती है, अब चल रहे हो आप, मम्मा ने एक बार क्या, आओ ओके, मेरे को इस शॉप से भी कुछ लेना है, जरा 1 मिनट ये बैग पकड़ना। आप क्या करोगे बच्चों, अपने हाथ में उस कैरी बैग को उठाओगे, वो प्लास्टिक पॉलीथीन वाले, पीवीसी वाले पॉली बैग में। वो क्या, पॉली बैग के ऊपर बच्चों वो एक स्ट्रैप तो है, लेकिन वो क्या, जब आप पकड़ते हो वो एक रस्सी सी बन जाती है, चपटा होता है, लेकिन वो उसका एरिया कम हो जाता है। और मम्मा अगर 2 मिनट बाहर नहीं आती बच्चों, यू फील लाइक कि अभी वो बैग आपके हाथ से छूट जाएगा। और अगर आप थोड़ी देर उसको चल के, आपका घर पास में ही आप पहुंचते हो, जब बैग मम्मा को देते हो, व्हेन यू सी योर फिंगर्स, वो वहां से रेड हुई पड़ी होती हैं, उसमें वहां दबाव, प्रेशर से वहां गड्ढा बन जाता है। सेम एग्जांपल, क्यों, वो एरिया, वेट इज 5 kg, वेट इज नॉट मोर, क्वाइट मोर। 5 किलो क्या होता है वेट, आपका अपना वेट क्या होगा, 30+, तो 5 किलो वेट नहीं उठा सकते हैं। सिंस द प्रेशर बीइंग पुट ऑन योर फिंगर्स is being put on a very less area, you feel more. डेली का एग्जांपल, आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो, कई बार बस स्टैंड पे जाते हो, आपने देखा होगा बच्चों, वहां पे सामान उठाने वाले पोर्टर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, एक बैग दूसरा बैग सिर पे रखते हैं, लेकिन सिर पे रखने से पहले उनके पास जो गमछा होता है, वो उसके काफी पर्पज है उसके। आजकल तो गमछे के और भी ज्यादा पर्पज हो गए बच्चों, एक पर्पज और बढ़ गया, मुंह पे ले लो कोविड-19। वो गमछे को क्या करते हैं, हाथ धोए हाथ पोंछ लिया, गर्मी है पसीना आया तो पसीना पोंछ लिया, और जब कोई यात्री आ गया उसका सामान उठाना है तो उसका गोल सा वो बनाया, सिर पे रखा। अब क्या कर रहा है वो, when he is putting that gamcha on his head, rolling it and making some round item, what he is doing, he is what he is doing, he is broadening the area where the pressure, where the force, where the pressure or the weight of the bags will be felt. अब क्या है बच्चों, आपके सिर में ना यहां थोड़ा एक ऊपर सा होता है, अगर वही दोनों बैग वो अपने सिर पर रखता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे विच इज टचिंग, जो टच कर रहा है उसके बैग्स को, इट विल बी स्मॉलर एरिया। और जब वो अपने गमछे को
राउंड बना के ऊपर रखता है, एरिया विल बी मोर, प्रेशर फेल्ट ऑन द हेड विल बी लेस, प्रेशर फेल्ट ऑन द हेड विल बी लेस. सिंस एरिया इज इंक्रीज, वेट इज सेम, फोर्स इज सेम ऑन द हेड. आपने देखा होगा बच्चों, अब तो थोड़ा कम हो गया, अदरवाइज इन ओल्डर डेज राजस्थान में या ऐसे एरिया में जहां पानी नहीं होता था, पीने का पानी, लेडीज पीने का पानी लेने के लिए किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स वो जाती थी. वो गागर बोलते थे उसको, पीतल की होती थी, आजकल मटके हैं, पहले पीतल की वो गागर होती थी. मटका भी आप समझ लीजिए, आपने देखा होगा बच्चों, वो लेडीज क्या करती हैं, वो गोल सा कीनू बना के अपने सिर पे रखती हैं, बड़ा मटका, छोटा मटका, छोटा मटका, 3-3 मटके हैं, बड़े आराम से वो जा रही हैं, गीत गा रही हैं, आपस में 2-3 लेडीज बातें करती हुई आ रही हैं, उन्हें महसूस ही नहीं होता. दे कवर किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स एंड ब्रिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर टू होम. व्हाट इज दैट? कॉमन एग्जाम्पल विच वी आर ऑब्जर्विंग इन आवर डेली लाइफ. पोर्टर्स एग्जाम्पल, फैचिंग वाटर, मटकास वाला, गगरी वाला एग्जाम्पल, स्टेप ऑफ द स्कूल बैग, ये सारा एग्जाम्पल. और सेकेंडली क्या है बच्चों, घर में आप देखते हो, इफ यू आर यूजिंग ए न्यू नाइफ और इफ यू आर यूजिंग ए नाइफ विद हैविंग ब्लंट एज, कहने का मतलब क्या, यूज करते करते क्या होता है, जो नाइफ का जो काटने वाली साइड होती है ना, वो मोटी हो जाती है. और यह गलती से क्या होता है बच्चों, आपने उल्टी साइड से चक्कू पकड़ लिया, थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई किया, जिस आप क्या कद्दू काटने जा रहे हो, कद्दू तो नहीं कटता, आपकी उंगली कट जाती है. इट हैपन्स समटाइम्स. जल्दी जल्दी में कई बार हम ऐसा भी कर जाते हैं. क्यों? वो जो एज वाला एरिया है वो शार्प है, जो दूसरा साइड है वो ब्लंट है. वही बात है बच्चों, अगर आपका जो नाइफ है वो ब्लंट एज है, ब्लंट हो चुका है, सेम प्रेशर आप छीलने के वक्त फिंगर से अपने थंब से लगाते हो, यू कैन पील ऑफ इजिली. इफ द एज इज शार्प यू कैन नॉट पील ऑफ इजिली व्हेन द एज इज ब्लंट. आपने देखा होगा बच्चों, अगर घर में आपके कोई शादी है, हलवाई वगैरह आते हैं ना, वो मिठाई बनाने वाले आते हैं, सब्जी काटनी कुछ करना, सबसे पहले वो क्या करते हैं, उनकी लंबी लंबी छुरियां होती हैं, उसको पहले वो पत्थर के ऊपर शार्प करते हैं, सो दैट दे कैन कट द पनीर, दे कैन कट द वेजिटेबल, दे कैन कट द ऑनियन, दे कैन कट द टमाटो और द पोटैटोज इजिली. सो व्हाई ए शार्प नाइफ कट्स बेटर देन ए ब्लंट नाइफ. ये भी एक कॉमन डेली लाइफ का एग्जांपल है. देन व्हाई द टिप ऑफ द नीडल इज शार्प. कपड़े सीने वाली जो नीडल है, कोई दूसरी नीडल है, ड्राइंग बोर्ड वाली नीडल है, या आपकी वो ऑल पिन है, इसका टिप शार्प क्यों होता है? आपने ऑल पिन यूज करनी है, 3-4 पेपर के बीच में लगानी है. अगर उसकी टिप शार्प नहीं होगी, आप बच्चों जब प्रेशर लगाओगे अपने थंब से, इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू द पेपर, इट मे नॉट गो इनसाइड योर थंब. वो पेपर में कई बार क्या होता है बच्चों, जल्दी में आप ऑल पिन लेते हो, उसका एंड पॉइंटेड नहीं होता, टिप पॉइंटेड नहीं होती, ब्लंट होती है, वो आपके पेपर में घुसने की बजाय आपके हाथ में घुस जाती है. सो ऑलवेज टेक केयर व्हेन यू आर यूजिंग ऑल पिन, इट शुड हैव ए फाइन टिप सो दैट इट कैन इजिली पास थ्रू द papers where you want to use it. So, why the tip of the needle is sharp? कपड़े सिलने हैं बच्चों. अब अगर ब्लंट है तो आपके वो क्लॉथ को स्टिच नहीं करेगी, उसमें मोरे कर देगी भाई, होल्स कर देगी. टिप शार्प होती है, फोर्स जो है जब आप यूज कर रहे हो, सेम फोर्स इट बिकम्स इजी फॉर द टेलर मास्टर फॉर स्टिचिंग द क्लोथ्स एंड ऑल. दैट इज व्हाई द टिप ऑफ द नीडल इज ऑलवेज शार्प. Man standing and or sleeping on a cushion. अब क्या बच्चों, आपने देखा होगा आजकल क्या है, मैट्रेसेस होते हैं, गद्दे होते हैं घर के अंदर, बेड के ऊपर. आप अगर उस कुशन के ऊपर, पिल्लो के ऊपर खड़े होते हैं, अब क्या है बच्चों,
where the weight of your whole body is being put on that object, that cushion, smaller. पांव के ऊपर आ रहा है आपका सारा वेट, वो कुशन बहुत नीचे तब दब जाएगा, नीचे तब आपका जो उसका जो उसमें जो बैंड आएगा वो बहुत ज्यादा आएगा. नाउ व्हेन यू आर स्लीपिंग ऑन द सेम कुशन, सेम मैट्रेसेस, वेट तो आपकी बॉडी का सेम है. ये तो नहीं कि लेटने से आपका वेट कम हो गया और खड़े होने से आपका वेट ज्यादा हो जाता है. सेम वेट विल बी देयर. ओके, सो बट वो जो कुशन है आपका कंप्रेस होगा, कंप्रेस होगा. कॉमन एग्जांपल दैट आप देखते हैं साइकिल का टायर है, उसकी जो विड्थ है वो कम है, मोटरसाइकिल की ज्यादा है, बस की और ज्यादा है, ट्रक की और ज्यादा है, ट्रैक्टर की उससे भी ज्यादा है. और जो आपके आर्मी वाले टैंक यूज करते हैं उनके जो व्हील्स है उनके ऊपर एक बहुत स्टील की बड़ी चौड़ी पट्टी लगी होती है. क्यों? वेट बढ़ रहा है. फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द अर्थ, अर्थ इज द ऑब्जेक्ट हियर, एक्टिंग ऑन द अर्थ, दैट इज आल्सो इंक्रीजिंग. अब क्या है बच्चों, अगर बस के अंदर आप मोटरसाइकिल वाला टायर लगा देंगे तो वो नीचे जमीन में इट विल सिंक, धंस जाएगी, चलनी मुश्किल हो जाएगी. टैंक है, उसका वेट बस से भी ज्यादा है, उसके और यानी कि ब्रॉड व्हील्स हैं और उन व्हील्स के ऊपर, स्टील व्हील के ऊपर एक स्टील की पट्टी लगी होती है. आपने देखा होगा कभी, पिक्चरों में देखते होंगे आप टैंक चलते हैं. दैट इज व्हाई. अब क्या है, फोर्स अप्लाइड, एरिया ऑन विच फोर्स एक्ट. जो फोर्स क्या है, किससे एक्ट हो रही है? वेट ऑफ द साइकिल, वेट ऑफ द मोटरसाइकिल, वेट ऑफ द कार और बस और द टैंक और द ट्रैक्टर. Broader and broader and broader and broader. If the weight is increasing, go on increasing the width of the tire so as to avoid sinking on the earth. That's all. So these are all tires of tractor, bus and steel chain on tent wheels, not wheat. Okay. Now pressure. अब वही सेम है बच्चों. डेफिनेशन ऑफ प्रेशर विल रिमेन सेम. क्या? प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए ऑब्जेक्ट. सपोज वी आर हैविंग, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ कांटेक्ट. सपोज वी आर हैविंग व्हाट, सम लिक्विड इन ए कंटेनर. दैट लिक्विड इज आल्सो एक्सर्टिंग फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. Does it hold good in liquids also? Yes. Definition will remain same. The formula will remain same. Pressure is the force exerted per unit area. But here, depth will come into consideration. Higher the depth of the liquid, more is the pressure. And pressure with respect to liquids, we will study in the next lesson. I think 30-35 minutes हो गए. Today's lesson, it is more than sufficient. Go through it. Go through the book. Listen it once and twice. Any problem, free to contact me at my phone number. Thank you. Enjoy your study.